السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق اسحاق۔ ناظرین، پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جہاں لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور جہاں خون پانی سے بھی زیادہ ارزاں ہو گیا، اس وقت پانی کی سب سے زیادہ قلت کا سامنا ہے، جبکہ عالمی رپورٹس کے مطابق پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو پانی کی کمی کا شکار ہیں۔ پاکستان زراعت پر انحصار کرنے والا ملک ہے جس کا دار و مدار پانی پر ہے، مگر افسوس کہ وطن عزیز میں صرف زرعی شعبے کو ہی پانی کی قلت درپیش نہیں بلکہ انسانی ضروریات کے لیے پانی کی دستیابی بھی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پانی کی قلت کے پیش نظر پاکستان میں نئے آبی ذخائر کی اشد ضرورت ہے، لیکن ہمارے حکمران خواب غفلت میں ہیں۔ بیانات اور دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں مگر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ حالانکہ اگر پڑوسی ملک بھارت کی بات کریں تو وہ نہ صرف اپنا مستقبل محفوظ بنا رہا ہے بلکہ ہماری کم علمی اور نااہلی کے باعث پاکستانی عوام کے منہ سے نوالا چھیننے کے بھی درپے ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک صوبوں میں پانی کی یکساں تقسیم اور ڈیمز بنانے پر متفق نہیں ہو پا رہے اور اس سنگینی پر صرف نظر کیے ہوئے ہیں، جبکہ ترقی پذیر ممالک آنے والے دنوں کی جامع حکمت عملی میں مصروف ہیں۔ یہ چیز اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے ناظرین کہ آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ جو جنگیں ہیں وہ پانی پر ہوں گی۔ اس ایشو پر بات کریں گے اور خاص طور پر موجودہ حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ حکومت میں باتیں تو بہت کی گئیں۔ بھاشا ڈیم کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کافی کہا گیا کہ 2008 میں اس ڈیم کو بننا شروع ہونا تھا، لیکن فائنینسنگ کا مسئلہ تھا یا کیا وجوہات تھیں، یہ منصوبہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا۔ اگر 2008 میں شروع ہو جاتا تو 2014 میں یہ مکمل ہو جاتا اور اس سے تقریباً 4500 میگا واٹ نہ صرف یہ کہ بجلی سسٹم میں آ جاتی بلکہ اور بھی ہمیں کافی فوائد ہوتے، نیویگیشن میں فائدہ ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ واٹر سٹوریج بھی اس کی بڑھتی۔ کالا باغ ڈیم پر تو ہم متفق نہیں ہو سکے، لیکن بات یہ ہے کہ پانی کے ذخائر بننا ضروری ہیں، بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں کہ بھارت جو ہے وہ ہمارے جو حصے کے دریا ہیں ان پر بھی رن آف ریور پروجیکٹس اور دیگر جو ہے وہ پروجیکٹ بنانے میں مصروف ہے، لیکن ہم کب ہوش میں آئیں گے یہ دیکھنا باقی ہے۔ بہرحال ابراہیم مغل صاحب سب سے پہلے ہمیں جوائن کریں گے، ایگری فورم کی یہ چیئرمین ہیں اور بہت سے فورمز پر اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں پانی کے مسائل سے متعلق۔ سب سے پہلے ان کو ہم لائن پر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ابراہیم مغل صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو شدید قلت کا سامنا ہے پانی کی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مونسون سسٹم جو ہے اس کا رین فال کا پیٹرن چینج ہو چکا ہے۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بارشوں کا دورانیہ کم ہے، 30 دن جو ہے وہ بارش ہوتی ہے، دیگر ممالک میں 200 دن تک بارش ہوتی ہے۔ تو ہم پانی کب کنزرو کرنا شروع کریں گے؟ حالانکہ یہ کسی ایسی کموڈٹی ہے کہ جس کو آپ پیدا نہیں کر سکتے، اس کو صرف محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ ہم کب ہوش میں آئیں گے؟ بہت مہربانی آپ کی۔ اگر ہم جو لوگ ہیں 40-50 سال کی عمر کے یا 30 سال کی عمر کے، آج سے 40 سال پہلے پاکستان میں ایک پاکستانی کو اوسطاً 5000 کیوبک میٹر پانی ملتا تھا، فریش واٹر، میٹھا پانی استعمال کے لیے۔ ٹھیک ہے، یا یوں کہیے کہ جو اللہ پاک پانی دیتے تھے گلیشیئر سے، سنو میلٹنگ سے، بارش سے، وہ 5000 کیوبک میٹر تھا۔ پریشانی کی، حیرانی کی اور سب سے زیادہ آج جو مصیبت والی بات یہ ہے کہ وہ 5000 کیوبک کے کم ہو کر 1000 کیوبک یا اس سے بھی کم ہو گیا ہے۔ جی بالکل۔ حکمران آنکھیں نہ کھولے، قوم آنکھیں نہ کھولے، لیکن انٹرنیشنل سٹینڈرڈز یہ ہیں کہ جب یہ فی کس پانی آدمی 1000 کیوبک سے کم ہوتا ہے تو اس علاقے کو صحرا، ریگستان یا ایتھوپیا جیسے حالات کا ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ ہم اس ایرا میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ دیکھیں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے، انڈیا، چائنا، نیپال، پاکستان، مشرقی پاکستان، یہ وہ تمام ممالک ہیں جہاں فیوچر میں فریش واٹر پر ڈسپیوٹ ڈیولپ ہوں گے، جنگ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پانی کی کمی یہاں بہت بڑا پوٹینشل ہے۔ یہ تھریٹ ہے کہ پانی نہیں ملے گا۔ پانی کیوں نہیں ملے گا؟ بدقسمتی سے میں اب قوم کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، آپ نے بجا فرمایا کہ گلیشیئر کے پگھلنے سے، بارش کے ہونے سے، سنو میلٹنگ سے اللہ پاک نے آپ کو سالانہ
130 मिलियन एकड़ फुट पानी तो दे दिया। ये भी एक हकीकत है कि 1960 के मुआदे के तहत जो आलमी मुआशी लटेरों ने कराया, भारत ने हमारा पानी सतलुज, रावी और ब्यास का छीन लिया। सीना जोरी करके 28 मिलियन एकड़ फुट पानी हमारा हमसे छीन लिया भारत ने, ये 3 दरियाओं में। लेकिन इब्राहिम मुगल साहब, क्या उस वक्त हम बाद में होश में आके इस मामले को कहीं ले जा नहीं सकते थे? जो आर्बिट्रेशन की कोर्ट है उसमें हम ये मामला नहीं ले जा सकते थे? आर्बिट्रेशन की कोर्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन आसिफ जरदारी साहब के जब एक एडवाइजर नजीब ऐसे होंगे जिन्हें पानी की अलफ बे का भी नहीं पता, और वो मेरा मुकदमा लड़ने के लिए एक नौजवान छोकरी या लड़की को साथ लेंगे, सुबह मुकदमा है शाम को वहां पहुंचेंगे, अपना तय्यश पूरा रखेंगे, मेरा मुकदमा नहीं लड़ेंगे। आज का वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब, उनका वाटर का एडवाइजर, उसे नहीं पता होगा बिजली और वाटर का एडवाइजर उनका वो पेट दर्द की दवाई बनाता है, फार्मासिस्ट है। उसे नहीं पता मेगावाट क्या होगा या माइक्रो या मैक्रो लेवल पे पानी की क्या डेफिनेशन होगी। वो एडवाइजर है आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का पानी के मतलब। जब इस तरह के फैसले ऐसे अफराद को जिम्मेदारियां दी जाएंगी, मैं कह ये रहा था कि ये जो बाकी 3 दरिया बचे, चिनाब, झेलम, सिंध, इस पर भारत आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर रहा है। बगलीहार की बात कर ले, किशन गंगा की बात कर ले, नीमू बाजगो की बात कर ले, चोटक की बात कर ले। आपका इंडस वाटर कमिश्नर या सोया हुआ है या माजरत के साथ सुना यह है कि बिका हुआ है। अच्छा, नहीं, ये चीज हमने एक चीज कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, यही चीज हमने जमात अली शाह के बारे में सुनी थी कि जी वो भी कुछ लगता है कि मिले हुए थे। क्या उसमें कुछ सच्चाई थी इब्राहिम मुगल साहब? देखें, जमात अली शाह एक मोरा था, असल फैसला बाबू करता है। वाटर एंड पावर का जो सेक्रेटरी इस्लामाबाद में बैठता है, मुझे ये बताएं कि बगलीहार डैम बहुत बड़ा डैम, उसकी प्री डिजाइनिंग 98-99 में शुरू हुई। ठीक है। उसके 7-8 साल उसकी कंस्ट्रक्शन होती रही। जनरल मुशर्रफ उस दौर में रहे, सियाह सफेद के मालिक रहे, बगैर पूछे हर काम किया। काला बाग के मतलब कहते थे कौम नहीं मानती, लेकिन बाकी हर काम उन्होंने वो किया जो उनके दिल को अच्छा लगा। जब ये भारत बगलीहार डैम बना रहा था, जनरल मुशर्रफ किसी को मरवाने के लिए तो ये कहते थे कि सुई का नक्का भी हम देख लेते हैं, हमसे छुपा हुआ नहीं है। उनको भी बगलीहार बनता हुआ नजर ना आया, ना जमात अली शाह को नजर आया। डॉलरों में या पाउंडों में छुपा हुआ था, कनाडा के फ्लैट के अंदर छुपा हुआ था, बच्चों की बाहर की तालीम के अंदर छुपा हुआ था। जब बन के स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो आप भाग के जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट पे, जिन्होंने उसके लिए डॉलरों में अरबों डॉलर कर्जा दिया हुआ है। वो अदारे उसके मतलब फिर फैसला खिलाफ उसके कैसे देते? ठीक है। ताहम यानी कि जब वक्त पे आपको बोलना चाहिए था, जब आपको वक्त पर निशानदेही करनी चाहिए थी, टेक्निकल रीजंस देने चाहिए थे, उस वक्त आप खामोश रहे, और बाद में जब मामला सारा हो गया तो उसके बाद आप पहुंच गए कि ये शादी नहीं हो सकती। उस वक्त आप खामोश इसलिए रहे कि जैसे मैंने अर्ज की कि डॉलर के पीछे छुपा के आपसे दस्तखत करवा लिए। नीमू बाजगो और चोटक जो डैम है, उनके एनओसी इस्लामाबाद के फेडरल बाबू ने भारत को दिए हुए हैं विदाउट स्टडीइंग कि उसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट क्या होगा। हमने बारहा कहा, हमने सबके सदर पाकिस्तान जरदारी साहब को खत लिखा, ये 8 डैम है, इन दरियाओं पे बन रहे हैं, ये इनकी कैपेसिटी है, इतना ये पानी ले जाएंगे, ये इनकी कंप्लीशन डेट है। हमें खत लिखे भी 2 साल हो गए, आज तक किसी ने एक्शन तक नहीं लिया। एक काजी नामी आदमी था फेडरल बाबू, उसने तो राब्ता करना भी पसंद नहीं किया। तबाह कर रहा है सियासी हमारा लीडर अपनी नाअहली की वजह से, और बाबू करप्ट है, करप्शन में बिक जाता है और मेरे पानियों का जो सौदा करता है। और रहती कहती कसर बकौल शमसुल मुल्क साहब के, भारत सालाना पाकिस्तानी रुपयों में 12 अरब रुपए पाकिस्तान भेजता है। यहाँ इसने एक लाबी खरीदी हुई है, जरा सा डैम का नाम ले, लाबी सड़कों पे आ जाती है, हमारी लाशों से गुजर के बनेगा। आज भी दासू 4 साल में बन सकता है। भोंजी
4 साल में बन सकता है, काला बाग 3 से 4 साल में बन सकता है, बाशा 7 से 8 साल में बन सकता है, अखोड़ी बन सकता है। अगर ये डैम बन जाए, इनसे आपको तकरीबन मलाज। अच्छा इब्राहिम मुगल साहब, इस मामले पर मजीद बात करेंगे, ये बहुत अहम नौयत का मामला है, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं नाज़रीन। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अयाज लतीफ़ पलीजो साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, इसके अलावा अवामी तहरीक के सरबराह भी हैं। अयाज लतीफ़ पलीजो साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। इसके अलावा इब्राहिम मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से। इब्राहिम मुगल साहब, ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए, आप तक भी पहुंचे ये झटके? जी झटके पहुंचे, बल्कि मैं तो कहता हूं कि क्रेडिट गोज टू आज टेलीविजन के सबसे पहले लगता है आपने ही इसको अनाउंस किया है। मैं आपके स्टूडियो में बैठा हुआ हूं और यहाँ झटके महसूस किए गए। लेकिन एक बात याद रखें, जब इंसानी जिस्म में दवाई की जगह पर जहर उतारा जा रहा हो, इंसानों को मूली गाजर की तरह काटा जा रहा हो, गोश्त में पानी के टीके लगा लगा के गोश्त वजनी किया जा रहा हो, दूध में केमिकल मिलाया जा रहा हो, 9 करोड़ लोग एक वक्त की मुल्क में रोटी ना खा पा रहे हूं, 2 करोड़ 40 लाख टन गंदम पैदा करने वाला मेरा पाकिस्तान, गरीब का बच्चा रोटी को तरस रहा हो, 15 मिलियन बेल्स कपास करने वाला पाकिस्तान, गरीब और मजदूर की बच्ची कपड़े और एक तार को तरसे, तो फिर फॉल्ट लाइनें भी बन जाती हैं, जलजले भी आया करते हैं। अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। और ये भी है कि जब अल्लाह का दिया हुआ 130 मिलियन एकड़ फुट पानी, जिसमें से 30 मिलियन एकड़ फुट मीठा, ताजा और खुदा की नेमत वाला पानी समुंदर की नजर कर दिया जाए, तो फिर जलजले नहीं आएंगे तो और क्या आएगा। अच्छा, यहीं पर शरीके गुफ्तगू करते हैं अयाज लतीफ़ पलीजो साहब। 12 रुपए का नान बिक जाए, 10 रुपए की रोटी बिक जाए, तो जलजले तो आएंगे, तूफान तो आएंगे। सर हमारे साथ मौजूद हैं अयाज लतीफ़ पलीजो साहब। पलीजो साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अयाज लतीफ़ साहब? अच्छा, अयाज लतीफ़ पलीजो साहब से हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ लाइन पर आ जाएं। बताया गया था कि वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मौजूद हैं हमारे साथ अयाज लतीफ़ साहब? अच्छा, उनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है। बहरहाल, अच्छा इब्राहिम मुगल साहब, एक चीज ये भी बताइएगा कि एक तो 103 मिलियन एकड़ फीट पानी हमारे पास मौजूद है, लेकिन अभी हम चीज ये देख रहे हैं कि जो हमारा ज़ेरे काश्त रकबा है, बजाय इसके कि फुल उसको हम यूटिलाइज करें और ज़ेरे काश्त रकबे में इजाफा किया जाए, हम उसमें हमारे जो है वो पानी की प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो मौजूद भी है उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पानी जाया हो रहा है। और दूसरा, हमने एक जो सर्वे देखा है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि प्रेडिक्शंस हैं कि 2025 तक जो है वो 277 मिलियन एकड़ फीट पानी की हमें जरूरत होगी। तो ये कैसे मैनेज कर पाएंगे हम लोग, अभी जो हमारा विजन हुक्मरानों का नजर आ रहा है उसके मुताबिक? करूं आपको, अल्लाह पाक आपको अगर 130 मिलियन एकड़ फुट पानी देता है तो मेन तो डैम आपके 2 ही है ना, मंगला और तरबेला। ठीक है, कुछ और मंगला और तरबेला जब बने थे 70s में 60s में, तो ये 17 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर करते थे। ठीक है। सिल्टिंग के बाद आज इनकी कैपेसिटी 10-11 मिलियन एकड़ फुट से ज्यादा नहीं रही। ठीक है। ये जो सिल्टिंग से पानी बचा है, हम तो कहते हैं इसे किसी डैम में इकट्ठा कर लो, और काला बाग इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नया हम पानी नहीं मांग रहे, हम मुसलमान हैं, कहते हैं कि पानी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आपने ठीक कहा, पाकिस्तान में 2 करोड़ एकड़ ऐसे हैं कल्चरेबल वेस्ट, 1 करोड़ एकड़ बलूचिस्तान में, 30 लाख एकड़ पंजाब में, 25 से 33 लाख एकड़ सिंध में, तकरीबन 30 लाख एकड़ खैबर पख्तूनख्वा में। ये कल्चरेबल वेस्ट जमीन जो है, पानी मिल जाए, अंडर कल्टीवेशन आकर पाकिस्तान के लिए 15 से 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट को यकीनी बना सकते हैं। भारत को ये बताइए कि वजह क्या है, वजह क्या है कि हम सोच क्यों नहीं रखते?
इब्राहिम मुगल साहब, हमारी सोच और अप्रोच क्यों नहीं है? पिछली 3 दहाइयों में कोई नया आबी मंसूबा नहीं बना, कोई नया आबी जखीरा नहीं बना, हम क्यों ख्वाब गफलत में हैं? मैं बताता हूं, भारत को मिलता है 740 मिलियन एकड़ फुट पानी, उसमें से वो 40% बचा रहा है। मुझे मिलता है 130 मिलियन, मैं उसमें से 10% बचा रहा हूं। अंदाजा करें आप सोच का, अंदाजा करें आप गवर्नेंस का, और वो 40% बचाने वाला मेरा अजली दुश्मन अब ललचाई हुई नजरों से मेरे जेलम चिनाब और सिंध पर उलट उलट के पड़ रहा है, और जिस रफ्तार से वो मेरे इन 3 दरियाओं पर कब्जा कर रहा है, ये अगर रफ्तार जारी रही, इस्लामाबाद वाला बाबू बेकता रहा, इंडस वाटर कमिश्नर ने आंखें ना खोली, लॉबियां अपना किरदार अदा करती रही, डैम ना बने, तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 साल में भारत इन दरियाओं का 100% पानी ले जाएगा। आपने कहा हुक्मरानों की आंखें क्यों नहीं खुली, मैं बता दूं, आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डालर साहब, ये 3 ही हुक्मरान हैं आज पाकिस्तान के। ये कोई डैम इसलिए शुरू नहीं कर रहे कि डैम मुकम्मल होगा 5 साल के बाद, उस वक्त पता नहीं हुकूमत किसकी होगी। ये मुसीबत जो है, मैं तो कहता हूं कौम इनको लिख के दे दे, आप शहनशाह आजम हैं, आप क़यामत तक यहां रहे, लेकिन ये 6 या 8 डैम बनाकर बिजली 3 रुपए यूनिट कर दे, जो कौम सालाना 980 अरब रुपए के बिजली के बिल देती है, उसकी किस्मत में गुर्बत क्यों लिखी गई है? अगर आज भी ये पानी से बिजली बने तो 980 अरब रुपए के बिल मेरा कराची, मेरा हैदराबाद, मेरा सक्खर सारे शामिल करके ये 300 अरब पर बिल आ जाएगा। गोया 580 अरब रुपए या 680 अरब रुपए जो बचेंगे, इससे रोटी 10 रुपए वाली 3 रुपए की हो जाएगी, 100 रुपए गाज वाला कपड़ा 5 रुपए। इब्राहिम मुगल साहब, हमारे साथ जहांजेब जमालदीनी साहब मौजूद हैं, ये कायम मुकाम सदर हैं BNP मैंगल के। बहुत शुक्रिया आपका जहांजेब जमालदीनी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में भी हम देखते हैं कि पानी की अशद जरूरत है, पानी के मसाइल का सामना है, पानी दस्तयाब नहीं है, क्यों इस जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही आपके ख्याल में? देखिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि पानी तो उसकी जरूरत तो तमाम दुनिया में, और खसूसन जो है ना पाकिस्तान में उसकी जरूरत मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा है। ठीक है। लेकिन खराब पहलू ये है कि हमें जो है ना 5 दरिया तो वहां से मिल चुके हैं, कुछ दरियाएं इस तरह की हैं जिन पे बंद बांधे जा चुके हैं, और अपना केस इंटरनेशनल जो है ना कोर्ट में चलाने से कासिर है, नए उसे जो है फॉलो कर चुके हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमें सबकी का सामना है। अब रही बात बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान में भी जो नहरी पानी हमें दिया जा रहा है, वो भी जो है ना उस पर भी जो है इस तरह की जो है कदम लगी हुई है कि उसे डे बाई डे कमजोर किया जा रहा है और कम से कम दी जा रही है, जिसमें जो सरापा एहतजाज है इलाके के लोग, जैसे मुराद जमाली और समामत और जैकबाबाद के लोग जो है ना अक्सर एहतजाज पे है। अच्छा। अब उसके अलावा भी बलूचिस्तान में बारिशें वैसे भी कम होती हैं, लेकिन यहाँ पे कुदरती तौर पे जो बड़े बड़े जो है नाले हैं जो अक्सर समंदर में जाके या दूसरे इलाकों में जाके जो है तबाही बचाते हैं, उस पे इस वक्त डैम बनाने से हमारे मुल्क के लोग कासिर हैं। उसकी वजह यह है कि हम अक्सर सुबह से शाम तक एक वेट लगाए जो है ना बैठे हैं कि कालाबाग डैम, कालाबाग। भाई कालाबाग डैम जो है ना वो तो फीजेबल भी नहीं है, और उस पर जो है इतराजात इतने हैं कि वो बन नहीं सकता। इसके अलावा जो है ना काफी डैम बन सकते हैं, उसमें खसूसन बलूचिस्तान में जो है ना 8-10 बड़े बड़े डैम बन सकते हैं, जिनसे बिजली भी पैदा की जा सकती है और पानी भी जो है रिजर्व हो सके, लाखों एकड़ जमीन जो है ना हम यहाँ पे सैराब कर सकते हैं। लेकिन जो है ये खाली खोली बातें, जज्बाती बातें कि ये होगा वो होगा, ये करेंगे। इब्राहिम मुगल साहब, फिजिबिलिटी तो बहरहाल इत्तफाक राय तो सूबों के दरमियान नहीं हो पा रहा कालाबाग डैम के लिए, लेकिन फिजिबिलिटी नहीं है आपके ख्याल में इसकी? जहांजेब जमालदीनी साहब कहते हैं अगर आवाम नहीं चाहते हो, 3 सूबे नहीं चाहते हो, तो उस पर जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? आपके पास इतने साइट्स मौजूद हैं इस वक्त जो है ना, कश्मीर से लेके जो है ना, अगर आप यहाँ नीचे आ जाएं, आपके पास इतने साइट मौजूद है, उन पे आप जो है डैम बनाते रहे, कोई मना थोड़ी करेगा। इब्राहिम मुगल साहब, बलूचिस्तान जो अब सुने एक मिनट, बलूचिस्तान में खसूसन इस तरह के जो है बरसाती पानी जो यहाँ पे जाया हुआ करता है, अगर उस पे आप डैम बनाएं तो बलूचिस्तान को जरूरत नहीं पड़ेगी पानी की दूसरे इलाकों से जो है लेने की। लेकिन ये तो इस तरह के लोग हैं जो इनमें जो है ना हुक्मरानी मतलब तरीकेकार इनकी जो है ज़हफ़ है, कमजोरी है इनमें कभी। अच्छा जहांजेब साहब, आपके पास दोबारा हम आएंगे, लेकिन इब्राहिम मुगल साहब से इसका जवाब चाहेंगे। एक तो यह है कि इत्तफाक राय 3 सूबों का नहीं हो पा रहा, आपने भी जिक्र किया कालाबाग डैम का, लेकिन इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा। परवेज मुशर्रफ साहब ने भी इसके लिए कोशिशें की और पहले भी कोशिशें होती रही, लेकिन इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा। एक तो उसकी वजह भी थोड़ी सी बयान कीजिएगा, और दूसरा फिजिबिलिटी के हवाले से जहांजेब साहब ने कहा कि फिजिबल भी नहीं है ये। देखें, मैं कर्ज कर दूं,
सबसे पहले तो ये स्टेप उठाना पड़ेगा कि बलूचिस्तान मेरा नहायत अहम सूबा, 1 करोड़ वहां एकड़ कल्चरेबल वेस्ट है, जितना उसको आज नारी पानी मिलता है इससे दुगना मिलना चाहिए। और मेरा बलूचिस्तान भेड़ बकरी, सेब, कपास और चावल इतना पैदा कर सकता है कि पाकिस्तान की मुआशी हालत बदल सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये अर्ज कर दूं, दरियाए सिंध में जो पानी जाता है, दरियाए सिंध का 60% है, 40% पानी दरियाए काबल, दरियाए स्वात, दरियाए चतराल, दरियाए सुवान। अगर फिर भी हमारे सिंध वाले भाइयों को कोई इतराज है, सिंध का पानी इसके जरिए कालाबाग के जाने दे, कैरी ओवर के तौर पर जाने दे। बाकी 40% पानी जो है वो तकरीबन 17 मिलियन एकड़ फुट बनता है, कालाबाग तो 6 मिलियन एकड़ फुट लेगा। हम तो ये भी कह सकते हैं आज थर तबाह हुआ, आज थर में मौत आई। और मैं आपको बता दूं, सिंध गवर्नमेंट का रिकॉर्ड देख लें, कहा गया था गुद्दू या सखर से थर के लिए नहर निकाली जाएगी। गफलत है कि आज तक थर से नहर निकाली नहीं गई। थर वालों का क्या कसूर? कालाबाग डैम बना होता, आज थर में एक मौत ना होती, 15 से 20 लाख वहां एकड़ गुलो गुलजार होते। बिजली आज सिंध के लिए 4000 मेगावाट 3 रुपए यूनिट वाली होती। हम तो ये भी कहते हैं जितना पानी आज सिंध या बलूचिस्तान को मिलता है, कालाबाग बनने के बाद अगर उसमें 20 लाख एकड़ फुट इजाफा ना हो, कालाबाग ना बनने दे। अगर नौशहरे में एक आदमी खड़ा है, उसकी एड़ी भी गीली हो जाए, कालाबाग ना बनने दे। अगर कालाबाग शुरू करे, प्री फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी, कंस्ट्रक्शन, ईंट, रेत, बजरी तमाम सिंध बलूचिस्तान से लाए, सिंध और बलूचिस्तान के इंजीनियर बनाए, खुद ही पानी इसका सारा ले जाए, खुद ही बिजली सारी इसकी ले जाए। लेकिन समुद्र ने कभी शुक्रिया अदा नहीं करना, इस रिसोर्स को जाया ना करे। मेरा तो जासिर साहब यही फरमाइएगा कि अब एक तो इन्होंने इब्राहिम मुगल साहब ने इस मामले पर रोशनी डाली, दूसरा इरसा का किरदार आप कैसा देखते हैं कि इरसा सही तरीके से पानी की तकसीम को यकीनी बना रहा है कि जो उसका मैंडेट है उसके मुताबिक वो सही काम कर रहा है? मेरे से पूछ रहे हैं? जी जासिर साहब। जी मोहतरम, इरसा सबसे ज्यादा जो है ना, जो फिंगर पॉइंटिंग इस वक्त हो रही है पूरे पाकिस्तान में, वो इरसा पे हो रही है। बाज़ इलाकों में आपने देखा होगा कि पानी कुछ ज्यादा दी जा रही है, बाज़ इलाकों में पानी जो है ना बिल्कुल वहाँ पे उनकी नहरें बिल्कुल सूख चुकी हैं, जमीनें जो है ना गैर बंजर हो चुकी हैं। लेकिन तमाम सूबों के नुमाइंदे तो मौजूद हैं जाज़ेब साहब। प्लीज मैं बात करता हूँ। असल में अगर आप जो है ना वहाँ पे जो सिस्टम तय हो चुके हैं, उस सिस्टम के तहत लोगों को पानी नहीं देंगे, उनकी नहरी जरूरियात पूरा नहीं करेंगे। अभी कच्ची कैनाल देखें, आज से जो है ना 15-18 साल पहले जो है ना उसकी इब्तिदा हो चुकी थी, आज तक जो है ना उसका काम रुका हुआ है और यहाँ पे लाखों एकड़ जो है ना अराजी उससे सैराब हो सकती है। आपका अंगोल डैम है, इस वक्त जो है नाड़ी डैम है, आपकी जो है ना मूला डैम है, इसी तरह हमारे पख्तून इलाकों में जो है ना कुछ तरह के डैम है, उनको अगर बनाया जाए तो यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हल होंगे। अभी हमने एक रट लगाई हुई है कि कालाबाग डैम का। अब भाई मेरे भाई जब 3 सूबे मान नहीं रहे, उसमें बेहतर तरीका है उसके मुतबादिल आप जो है ना 30 डैम बना लें, क्यों उस पर आप बचत है। और जहाँ तक जो है ना चौलिस्तान और जो धर का ताल्लुक है, उस पर जो है इस वक्त भी आप नहरें निकाल सकते हैं, जरा सिंध से निकाल सकते हैं, दीगर इलाकों से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है ना ये विल ही मौजूद नहीं है कि उन्हें हमने पानी देना है, वहाँ पे उन इलाकों को सैराब करना है, आबाद करना है। जब विल नहीं होगा तो कैसे जो है वे निकलेगी, तरीकेकार कैसे निकलेगा? हम तो यहाँ पे जो है कुछ ख्याली बातों पे चलते हैं कि भाई ये होगा वो होगा, अगर ये हो तो ये होगा। भाई अमली तौर पे इन तमाम चीजों को जो है फिजिबल बना के हमें काम करना है, चाहिए गवर्नमेंट हो, आइंदा गवर्नमेंट हो या आने वाली गवर्नमेंट हो। ये चीजें जो है ना उस वक्त जो है ना काबिल फहम होती हैं जब आप इस पे अमल शुरू करेंगे और साथ ही मुतबादिल देखेंगे। आज नापने की दुनिया में इस वक्त जो है ना 74,000 डैम जो है ना आपके इसमें अमेरिका में, वहाँ भी ये डैम बन सकते हैं। आपके इलाकों में तो 74,000 ना, आप 25-20 डैम तो बना के दिखा दें तो यहाँ पे कितनी आबादी होगी, कितने लोगों को फायदा होगा। हम तो इससे कासिर है, फकत एक डैम पे जो बजट है जिसे जो सूबे पख्तूनख्वा नहीं मान रहे, सिंध नहीं मान रहे। बलूचिस्तान के लोगों को उससे फायदे में नुकसान, लेकिन अहले बलूचिस्तान खसूसन बलूचिस्तान की असेंबली में भी उसने करारदाद पास की थी कि ये नहीं बनना चाहिए। ठीक है, मजीद गुफ्तगू करेंगे कि किस तरीके से पानी को कंजर्व किया जा सकता है और जो पानी अवेलेबल है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو پاکستان ایٹ 7 میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ابراہیم مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں. اس کے علاوہ جہانزیب جمال دینی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مصباح الدین فرید صاحب ہمیں جوائن کیا. انہوں نے ابھی یہ سابق ایم ڈی ہیں کراچی واٹر بورڈ کے. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. آپ سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے گزشتہ دنوں، پہلے نارملی ہم یہ چیز نہیں سنتے تھے، لیکن جو پانی کی قلت کا مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. گزشتہ دنوں ایک جو ہے الارمنگ سچویشن ہم نے دیکھی جب کہا گیا کہ ہب ڈیم جو ہے وہ ڈیڈ لیول تک پہنچ گیا اور کراچی کے شہریوں کو پانی دستیاب نہیں ہو پائے گا. یہ سارا کیا معاملہ ہے، ذرا اس کی وضاحت کیجیے. بہت شکریہ اشفاق صاحب آپ کا بھی اور جیو ٹیلی ویژن کا بھی کہ اس نے اس اولین اور سنگین مسئلے پہ پروگرام کیا. دیکھیے یہ بات بہت پہلے، آج سے 2 سال پہلے بھی امریکی ماہرین بھی پاکستان آئے تھے اور انہوں نے جو دنیا بھر میں موسمی تغیرات پر کام کر رہے ہیں انہوں نے اس ٹائم پہ انتباہ کیا تھا. اس ٹائم پہ یہ بتایا تھا کہ ساری دنیا میں موسمی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں اور ایسا رہے گا کہ ہر جگہ جو ہے وہ کسی مقام پر بالکل مستقل طوفان برف ہوں گے اور کہیں مستقل بارش ہوں گی اور کسی علاقوں میں نہیں ہوگی. تو میں نے اس زمانے میں ایک مضمون لکھا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا، اور اس میں ان ماہرین نے یہ کہا کہ پاکستان ڈیم بنائے، پانی کو ریسٹور کرے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ آج سے 2 سال پہلے جو ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی اور کراچی کیونکہ دنیا کی ایک بڑی یوٹیلیٹی سروس ہے تو اس کے سربراہ کی مجھے اس میں بلایا گیا تھا. میں نے بھی اس میں پیپر پڑھا تھا. اچھا، اس کے بعد پھر مجھے واشنگٹن میں بھی ایک ورلڈ کانفرنس ہوئی، میں وہاں بھی گیا. وہاں بھی اس بات پہ زور دیا گیا کہ ساری دنیا میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے موسم تبدیل ہو رہے ہیں، بالکل پیٹرن چینج ہو رہے ہیں، رین فال پیٹرن، دیگر چیزیں. اور انہوں نے یہ تنبیہ کی کہ 2020 تک یہی موسم چلے گا اور 2025 تک ساری دنیا کے گلیشیئر میلٹ ہو جائیں گے. تو تمام دنیا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے سمندری پانی کو میٹھا کرنے کے پلانٹ پہ کام شروع کیا، ڈیسیلینیشن پہ، کیونکہ ان کو سستا بھی پڑتا ہے. ہمارا سمندر چونکہ آلودہ بھی ہے تو ہمیں ڈیسیلینیشن اور مہنگا پڑے گا. ہمارا پانی اتنا سستا ہے. کراچی میں ایک پلانٹ لگا بھی تھا ڈیسیلینیشن کا، میرے خیال میں وہ چل بھی نہیں لگے ہیں، وہ چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے 1 ملین کے ہیں. لیکن کراچی کی ریکوائرمنٹ تو بہت ہے. بلکہ میں دوبارہ اپنے اس پوائنٹ پہ آ جاؤں کہ کراچی کو 65 کروڑ گیلن پانی روزانہ سپلائی ہوتا ہے، جس میں سے 10 کروڑ گیلن ہب ڈیم سے اور باقی 55 کروڑ گیلن جو ہے وہ کنجر جھیل و انڈس سورس سے ملتا ہے. ہب ڈیم کی بھی بات اچانک نہیں ہوئی، اس کا ڈیڈ لیول ہوتے ہوتے کم ہوا ہے اور گزشتہ 3 سال سے ادھر بارشیں نہیں ہوئی. خشک سالی، اس پہ انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس پہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ تنبیہ آ چکی تھی، یہ تنبیہ اچھا ایک اس پہ بات کریں گے. ابراہیم مغل صاحب، خشک سالی کی بات ہو رہی ہے، خشک سالی پہ انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن واٹر مینجمنٹ، واٹر پریزرویشن تو انسان کر سکتا ہے. کیا تجاویز آپ کی اس حوالے سے ہوں گی کہ حکومت ان کو مد نظر رکھے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے جہاندیدہ لوگ، کوئی ایسے پیش بینی کرنے والے لوگ موجود ہیں حکومت کے ساتھ کہ حکومت کو اس حوالے سے مشورے دے سکیں؟ بہت مہربانی. یہ ٹھیک بات ہو رہی تھی. دنیا کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 3 حصے پانی ہے، وہ بریکش پانی ہے، وہ سیلائن واٹر ہے، اور 1 حصہ خشکی ہے. یہ اس 1 حصہ خشکی کو تازہ اور فریش پانی چاہیے. اور میں پھر عرض کروں کہ پاکستان کو اللہ نے فی الحال گلیشیئر، سنو میلٹنگ اور بارش کی شکل میں کم پانی نہیں دیا ہوا. لیکن مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ 1 سال پہلے آپ نے دیکھا بدین، ٹھٹھا اور سندھ میں پانی اتنا بارشیں آئیں جی کہ تباہی ہو گئی. ابھی آپ حیدرآباد، کراچی دیکھ لیں، لیٹر اسلام آباد کو لکھ رہے ہوں گے کہ جی سیلاب آنے والے ہیں، تباہی ہوگی، اتنے ارب روپیہ دے دیں. ایک طرف جس سیلاب سے تباہی آتی ہے وہ پانی ہے، وہ ہوا نہیں ہے. اس پانی کو کیوں نہیں روکتے؟ ڈیم کا پرپز فلڈ کو روکنا، سستی بجلی دینا، اریگیشن کی ریکوائرمنٹ پوری کرنا. میں آپ کو واضح کروں، لاڑکانہ میں ایکڑ کے کسان کے لیے 19 کیوسک پانی ہے، پنجاب میں 3 کیوسک پانی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ لاڑکانے والے میرے بھائی یا سندھ والے میرے بھائی واٹر مینجمنٹ سیونگ ٹیکنیک 43% بھی ابھی اڈاپٹ نہیں کی. پنجاب میں وہ 86% سے اوپر جا چکے ہیں. جب تک پانی کی اہمیت کو نہ سمجھا گیا، جب تک پانی کو بچانے کے معاملے نہ کیے گئے، میرے بھائی جہانزیب صاحب نے ٹھیک کہا
काला बाग डैम की मैं आप और बात कर दूं, ये अजय बलोचिस्तान जैसे इन्होंने कहा ना फायदा है नुकसान है, काला बाग बनने के बाद जितना आज मिलता है पानी बलोचिस्तान को, उससे 10 लाख एकड़ फुट पानी ज्यादा ना मिले तो काला बाग को बम से उड़ा दें। अगर डेरा इस्माइल खान पन्नू को तकरीबन 8 लाख एकड़ फुट पानी ज्यादा ना मिले, बम से इसको उड़ा दें। सिंध जब तरबेला डैम बनने लगा है तो मेरे सिंधी भाइयों ने कहा हमारी लाशों से गुजर के बनेगा, तरबेला बना, सिंध में इब्राहिम मुगल साहब इस पे बात करेंगे। हम कराची की अगर बात करें मिसबाउद्दीन साहब, इब्राहिम मुगल साहब, मिसबाउद्दीन फरीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम कराची की बात करें खासतौर पर, यहाँ पर अब ये है कि वाटर मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ा मसला है। जाहिर है कि पानी के एक तो इलीगल थेफ्ट की जो है वो काफी सारी मिसालें मौजूद हैं कि इस तरह के होते हैं, और खासतौर पर पानी की प्रिजर्वेशन उसको किस तरीके से यकीनी बनाया जाए और प्रॉपर मैनेजमेंट उसकी किस तरह से। ये जनाब की बात से मैं मुत्तफिक हूँ, पानी के इसराफ को रोकना चाहिए, और ये 4 साल से 5 साल से सारी दुनिया में वाटर कंजर्वेशन पे काफी काम किया जा रहा है। वाटर बोर्ड ने भी किया, लेकिन चूंकि आप स्पेसिफिकली कराची की बात कर रहे हैं, देखिए कराची में जो आबादी का इतना इस कदर आबादी बढ़ गई है, कराची को जो पानी सप्लाई किया जा रहा है पहले वही कम है। इस पे वाटर बोर्ड से तवक्को करना कि वो पानी की तकसीम को मुनसिफाना और मुतवाज़न बनाएगी, ये न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन बात है। कराची में जितनी स्टडीज हुई हैं आज तक, उसके लिहाज से आज 120 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है कराची की इंडस्ट्रीज को, कराची की कमर्शियल एक्टिविटीज को, और कराची में रहायश पजीर लोगों को पानी पिलाने के लिए। ठीक है। कराची के फिर अब कराची में कसीर मंजिला बिल्डिंगें भी बननी शुरू हो गई हैं। पहले तो कराची की जो रिक्वायरमेंट है पानी उससे भी ज्यादा है। अभी हब डैम से 10 करोड़ गैलन पानी और कम हो गया। हब डैम से 18 करोड़ गैलन पानी मिलता था, जिसमें से 10 करोड़ गैलन जो है हब के इंडस्ट्रियल एरिया और वहाँ के रहायशी लोगों के लिए, और 10 करोड़ कराची आता था। अब वो पानी ना आने की वजह से औरंगी, बल्दिया और उससे मुल्का तमाम इलाके जो है साइट वगैरह के, वो दरिया सिंध से पानी उसको देना पड़ रहा है, और कराची में एक दिन का नागा कर दिया गया है। ये कराची में पानी बहुत कम है, और मैं जनाब की राय से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पानी को कंजर्व करना चाहिए। गैर मुल्की माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को डैम बनानी चाहिए। ये बात भी दुरुस्त है कि सैलाब आता है तो पानी समंदर की नजर हो जाता है, उसको हम नहीं करते। मैं एक बात और करूंगा, अच्छा, कि जो हमारे माहिरीन हैं वो कौम को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो हुकूमत को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। जमात अली शाह साहब ने कहा कि किशन गंगा डैम की तामीर पर आलमी अदालत ने हुक्म इम्तनाई दे दिया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इस पे हम बात कर चुके हैं। अच्छा, मैं इसमें जो हमारे मेजर जनरल जुबैर साहब हैं, जो रूह रवा हैं उसके नीलम झेलम प्रोजेक्ट के, उनकी बात कोट करता हूं। उन्होंने कहा किशन गंगा डैम पे भारतीय माहिरीन। अच्छा, वक्त जो है वो थोड़ा सा कम है। जहांजेब जमालदीनी साहब, आखिर में ये फरमाइएगा कि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि सियासी जमातें प्रोटेस्ट कर रही होती हैं बहुत से मामलात पे, क्या पानी के मसले पर आपने कोई कभी आवाज उठाई या कुछ इरादा रखते हैं इस हवाले से? जी, इस सिलसिले में तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में जो है ना आवाजें उठती रही हैं, और मेरे ख्याल में जो निहायत ही अहम मसला अक्सर कहा जाता है कि तीसरी या चौथी आलमी जंग जो है ना बशर्ते कि इंसानियत यहाँ पे जो है ना महफूज हो, तो लड़ाई बेसिकली जो है ना पानी पे होगा। अब तो मैं ये कहूंगा कि पानी की प्रिजर्वेशन, अब ये मिसमैनेजमेंट और आपकी करप्शन, खराबियां और आपकी जितने भी जो है ना एक्सपर्टीज है वो जो है ना यूजलेस किस्म की प्रेजेंटेबिलिटी देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जहांजेब जमालदीनी साहब। वक्त मुख्तसर होने के बायस हम मजीद गुफ्तगू नहीं कर पाए। मिसबाउद्दीन फरीद साहब, हम पहले ही ओवर जा चुके हैं, और मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। देखिए, आज हब डैम में पानी नहीं है तो कराची पानी का क्राइसिस का शिकार हो गया है। मैं उस वक्त से मुतनब्बे कर रहा हूं कि जिस दिन दरिया सिंध में पानी होगा तो जंगली हयात, इंसानी हयात, आबी हयात सबको खतरा होगा, काश्तकारी को खतरा होगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। मैं डरा नहीं रहा, मैं मुतनब्बे कर रहा हूं कि ये डैम बनने हमें बिल्कुल डरना चाहिए उस वक्त से। बहुत शुक्रिया आपका मिसबाउद्दीन फरीद साहब। इंशाल्लाह फिर नशिस्त रखेंगे, इस हवाले से पानी के मसले पर बात करेंगे। इब्राहिम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे शुरू से, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सोचना हमें यहाँ पर यह होगा कि हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, और जिस तरह से हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सब ने यही कहा कि आने वाले दिनों में जंगें पानी पर होंगी, तो अगर हमने अभी होश के नाखून न लिए तो आने वाले दिनों में मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। पाकिस्तान@7 से फिलहाल इतना ही। अशफाक के साथ को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने कहवा।